हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 16। ये चैप्टर 16 जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर, यानी भारत के जो है देखा जाए तो भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विस्तार पूर्वक इसमें जो है काफ़ी कुछ है, तो ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिजिकल फीचर, द नेक्स्ट पॉइंट हेयर ऑफ size. The size is the most important here. The wherein the size here, the India has account for a 2.42% of the world as a total land area. There is the India is occupy only for the 2.42% of the world total land of area here, and whereas it is a substance is a 60% of the world population. 60% here of world population, the number 2 of the population of the India here. You will know more about it. The lesson number 26 on population of India. The land is a fortune of the Indian measuring 15,200 kilometer. There is important here. The land containers of India is measuring to the 15,200 kilometer, and Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Myanmar and Bangladesh share a common boundaries with India. There is an important point here. The Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Myanmar and the Bangladesh share the common boundaries with India. The kingdom of the Bhutan is situated in the eastern Himalayas. There is important here. The kingdom of Bhutan is situated in the eastern Himalaya. It is a small country and the responsibility of the defense rests with the India. Most of our is the boundaries with the Pakistan and Bangladesh is almost the man-made. There is an important point. With the Pakistan and Bangladesh almost man-made, there is no mountain range or the river from the natural boundaries. There is no mountain range or river to form our natural boundaries. The international boundary of India is a pass-through of a variety of landform. The international boundary of India pass through a variety of the landform. The barren desert land is a dense green agricultural and the field gushing rivers known as the Cloud Mountain, as well as a dense forested mountain range, and their defense such as international boundaries is a passing through the various kind of territory contained are different job here. And India is a soldier is therefore exposed to the various type of extremely hostile condition on the course of his duty. The sometime he is posted on the ice called glacier. There is an important point here. Sometime he is posted on the ice called glacier. At the time he has to bear there of the burning sun, and he has to be faced in the hot sand of the desert. After there is the posted in, there is a Mars is a river rings running and think is a forest track of the northern east. Our country has to spend crores of rupees daily for the defense of such a long and
inhospitable boundary that is a pass through various kind of terrain. There is important point here. The important table here that is arrived that India stands at the head of the Indian Ocean that span the continent of the Asia, Africa and Oceania is providing to further link to the other continents through the Pacific Ocean and Antarctica Oceans. In the Indian subcontinent, India is the only country to be sure it is a land for tenors with every member country of the subcontinent. There is an important point here. In India subcontinent, India is the only country to share its land for tenure with every member of country of the subcontinent. In area, India is the 7th largest country in the world. Put in a population, it stands next only to China. The variation in the local time between the eastern and the western extremity of the Indian is of 2 hours. And this has been to minimize to be contained extend by the adopting 82 to 30 east longitude as the standard median of India for calculating Indian standard time will follow through the hour watches. There is a important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया भारत के जो अगर देखें तो हम भौगोलिक स्वरूपों के अंतर्गत यहाँ पर आकार आया है। कहते हैं आकार काफ़ी मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। कहते हैं भारत की आकार अगर हम गणना करें तो ये जानेंगे हम इसमें कि भारत अगर देखा जाए तो संसार के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग कहते हैं 2.42% भाग ही भारत में है। यानी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत भारत के पास जो क्षेत्र है सिर्फ 2.42% भाग ही है, जबकि इसे संसार की कुल जनसंख्या का लगभग 16% भाग का जो है भारत में ही भरण पोषण होती है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी सी एरिया में कहते हैं संसार का 16% भाग भारत में ही निवास करता है। और कहते हैं जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जनसंख्या जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, और देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना छोटा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाता है कि भारत की जो यहाँ विभिन्नताएँ हैं, इतनी जो डिफरेंसेस है, इस वजह से जीवन जो है यहाँ बहुत ही सुचारू रूप से रहती है। तो देखा जाए सिर्फ 2.42% भाग है भारत को मिला हुआ है, और यहाँ पर जनसंख्या देखा जाए तो पूरे विश्व का 16% भाग का यहाँ पर जो है भरण पोषण होता है। भारत जनसंख्या वाले पार्ट में आप इसके विषय में और अधिक विस्तार से अध्ययन करोगे, ठीक है। 26 चैप्टर जब हम करेंगे तो उसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे कि भारत की जनसंख्या जो है किस कंडीशन में और क्या यहाँ पर विस्तृत है। भारत की भू सीमा अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। यानी भारत की भू सीमा जो है 15,200 किलोमीटर लंबी है। और कहते हैं यहाँ पर जो है भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से हमारे देश की सीमाएँ काफ़ी हद तक मिलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत जो है सीमाएँ अपने जो साझा करती है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। देखें तो भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा हुआ, यानी भूटान अगर देखें तो पूर्वी जो भूटान है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ छोटा सा ही देश है, और इसकी प्रतिशत का दायित्व जो है भारत पर ही है। यानी इसकी जो है प्रतिरक्षा का जो दायित्व है भारत पे ही है, भारत ही इसको जो है प्रतिरक्षा करती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगने वाली हमारी अधिकतम सीमा मानव निर्मित है। यानी यहाँ पर मानव का ही पूरा संरक्षण प्राप्त है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, सभी जगह जो है सीमा मानव निर्मित ही है। और प्राकृतिक सीमा के निर्धारण के लिए यहाँ न कोई पर्वत है और न ही कोई नदी है। यदि आप भारत की संपूर्ण भूभाग पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि यह कहीं तो अत्यंत गर्म है और कहीं शुष्क है और कहीं निर्जन मरुस्थल भूमि से गुजरती है, तो कहीं जो है हलाहालों खेतों से है और कहीं कलकल करती नदियों से है। यही भू सीमा एक और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरती है तो दूसरी ओर वनाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से होकर भी जाती है। विविध प्रकार की भूमियों से गुजरने वाली ऐसी विस्तृत भू सीमा की सुरक्षा का कार्य अत्यंत कठिन है। कहते हैं इसलिए सीमा पर पहरेदार करने वाले भारतीय सिपाही को अत्यंत प्रतिकूल दशाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर जो है प्रतिकूल दशाओं का सामना करना इसमें स्वाभाविक ही रहता है।
सेना का एक ही जवान कभी अत्यंत बर्फीले प्रदेशों की प्रहरी बनती है तो वह कहीं जो है तपती दोपहर में तपते रेत पर पहरा देता है। कभी उसी जवान की नियुक्ति उत्तर पूर्व की दलदलीय और कछारी भूमि पर या सघन वर्षा वनों से आच्छादित भूमि पर होती है। तो इतनी लंबी और विविध प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण भूमि से जो गुजरने वाली भू सीमा पर जो है राष्ट्र के प्रतिदिन करोड़ों रुपया खर्च करने भी पड़ते हैं। तो कहते हैं हमारे देश की जो जलवायु है विभिन्नताओं से भरा हुआ है और ये जो है बहुत सारे भारतीय सिपाही पर जो है प्रतिकूल दशाओं का जो है असर जरूर देखने को मिलता है। अगर इन सब बातों को पॉइंटों के रूप में हम देखें तो कहते हैं यहाँ पर पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशिया, अफ्रीका और इंडोनेशिया जो है महाद्वीपों के बीच विस्तृत हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एशिया, अफ्रीका और जो है ओशियानी महाद्वीपों के बीच में विस्तृत हिंद महासागर शीर्ष पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर से होकर शेष महाद्वीपों से संपर्क रखना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी देखा जाए तो इसी कारण प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर से होकर शेष महाद्वीपों से संपर्क रखना काफ़ी आसान होता है। उप महाद्वीपों में स्थित सभी देशों में से केवल भारत के साथ ही उप महाद्वीप के देशों की भू सीमाएँ मिलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उप महाद्वीपों में स्थित सभी देशों में से केवल भारत के साथ ही उप महाद्वीपों के देशों की भू सीमाएँ मिलती है। कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले सारे देश जो है 6 देश जो है भारत से भी बड़े हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। चीन जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर रखती है, जबकि भारत का जो है पूरे विश्व में जो है जनसंख्या के देखा जाए तो दूसरे स्थान पर अपना स्थान रखती है। भारत के पूर्वी छोर तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर रहता है, जिसके बारे में हमने जो है काफ़ी विस्तार पर चर्चा भी की है। कहते हैं भारत के पूर्वी छोर तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है और हमारे देश में जो मानक समय लिया गया है वो 82°30' पूर्वी देशांत भारत की मानक मध्य रेखा के मानक समय के इस अंतराल को सीमा तक कम कर लिया गया है। तो देखा जाए तो भारत के अगर आपको पूछा भी जाए तो भारत का मानक मध्यस्थ रेखा कितनी है तो 82°30' पूर्वी देशांत है। तो ये आपको दिमाग में रखना है और ये कई जगह MCQ के अंतर्गत भी आ जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। The next topic, according to the Indian physical feature, there are next topic is the most important here. Physiographical division of India. There is a physiographical division of India. There is the most important point here. Physiographical division of India. India is a land of physical diversity. Almost all types of the picture squares and the breathtaking landform are found here. According to the one estimate, is 29.3% of area of India is occupied by the mountains and hills, and 27.7% by the plateaus and 43% of the plains. There is an important point here. The India is a land of physical diversity. Almost all types of picture squares and the breathtaking the landform are found here. According to the one estimate, 29.3% of the area of India is occupied by the mountain and hills, and 27.7% by the plateaus and 43% by the plains. There is an important point here. For a physiographically point of view, India can be divided into following 4 regions. There is an important and most important point here. From a physiographical point of view, India can be divided into following 4 regions. The 4 regions are the most important here. The first here, Great Northern Mountain. The Great Northern Mountain, and second here, Great Northern Plains, and third here, Great Indian Plateaus, and fourth here, Coastal Plain and Island. Let's now more about this physical division here and discuss as a very long terms here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी चैप्टर देखा जाए तो भारत के जो है यहाँ पर भौतिक स्वरूप के अंतर्गत भारत के भू आकृति विभाग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के भू आकृति विभाग जो है किस प्रकार की है, तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं भारत भौगोलिक
भौतिक विविधताओं का देश है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत जो है भौतिक विविधताओं का देश माना ही गया है और यहाँ लगभग सभी प्रकार की जो है संस्कृतियाँ पाई जाती है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की जो है स्थिति पाई जाती है और यहाँ पर हर तरह के जो है जीव जंतु रहते हैं और यहाँ पर जो है हर तरह की कंडीशन मिलना एक स्वाभाविक बात बनाता है। कहते हैं कि मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के जो है 29.3% भाग पर जो है पर्वत है, यानी 29.3% भाग जो है पर्वत श्रृंखलाओं से जो है घिरे हुए हैं। वही 27.4% भाग जो है पठार से घिरा हुआ है और 43% भाग जो है मैदान फैला हुआ है। तो ये भारत की जो है विविधताओं का एक रूप है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर देखा जाए तो भारत कुल क्षेत्रफल का जो है 29.3% भाग जो है पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और 27.7% भाग जो है पठारों से भरा पड़ा है और कहते हैं 43% भाग जो है मैदान इस क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अगर हम करें बात भू आकृति दृष्टि से भारत के 4 विभागों में बांटा गया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उत्तरी विशाल पर्वतमालाएँ हैं, सबसे पहले है उत्तरी विशाल पर्वतमाला, उसके बाद है उत्तरी विशाल मैदान और उसके बाद है विशाल पठार और चौथा जो है तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आगे का होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि उत्तरी विशाल पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान, विशाल पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। दोस्तों इसके बारे में जो है हम अगले टॉपिक में भी सब जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें हम उत्तरी विशाल पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान, विशाल पठार, उत्तरी मैदान को भी लेंगे। ठीक है, तो अगला जो है वीडियो देखना नहीं भूलना। अगले में जो है हम इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है इस पर जो है अपना मत रखेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और अगला वीडियो के देखने की आने की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी जो है इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। जो बच्चे ने ज्योग्राफी लिया है, चाहे वो 8th क्लास के हों, चाहे 9th 10th क्लास के बच्चे हो, सभी के ज्योग्राफी में जो है इस तरह के जो है प्रश्न रहता ही रहता है। तो ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए आप सभी के साथ शेयर करोगे तो उनको भी जो है अपने भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो बाद में अगर रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको ये प्राप्त न हो, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक रिसर्च करोगे तो आपको जो है त्रिपाण सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च में जल्दी नहीं आता है। तो इसीलिए जो है आपको इतना सा करना है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। इससे ये होगा कि जो भी टॉपिक आपको देखना होगा आप जो है भली भांति जो है इसके वीडियो के ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हो।